اس روڈ کے اس کو چھوڑ کے آپ کہاں لنک روڈ نہیں جانا ہے, کہاں بھی نہیں جانا ہے. کچے کا ایریا یہاں سے 20 کلومیٹر جو ہے وہ اندر والی سائڈ پہ ہے. کچے کا علاقہ کون سا ہے؟ یہ ادھر جاتا ہے, یہ ادھر کورسو, یہ چوک سویترا, چوک سویترے کے آگے بھنگ کچا ادھر کا. کیا کیا اس نے؟ یہ باہر انڈڑو کھنی انہیں کے کوئی سے جو نہیں. اچھا, قتل کر کے آیا. السلام علیکم ناظرین, سندھ کے رنگ ٹریول ود حنیف کے سنگ. جی ہاں ناظرین, آج کی سیریز جو ہے وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں رحیم یار خاں میں, اور اس سیریز میں ہم کرنے والے ہیں کچھ ڈیفرنٹ. پہلے آپ نے پہاڑوں کی ویڈیو دیکھی میرے چینل پہ, اب میں آپ کو دکھاؤں گا سندھ, چولستان, ہندوؤں کے ٹیمپل, اور جو کچھ بھی سندھ کا کلچر ہے جو دکھا سکے آپ کو ایزی, وہ سب آپ کے ساتھ کریں گے شیئر. تو چلیے آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز. ابھی ہم رحیم یار خاں سٹی میں موجود ہیں. یہ دیکھ لیں, یہ ہے سٹی کا مین بازار, اور یہ تھا مہران ہوٹل جہاں ہم نے رہائش اختیار کی. یہ ہوٹل کی بالکونی. آج ہم جس ایریے سے سفر کریں گے اسے مشہور زمانہ کچے کا ایریا کہا جاتا ہے, اور میرے ساتھ ہیں شان بھائی جو اس سائڈ پہ پہلی دفعہ ٹریول کر رہے ہیں میرے ساتھ. میں خود بھی پہلی دفعہ کر رہا ہوں. جی شان بھائی, آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیے, ہم نے پہاڑی علاقے ہی کور کیے ہیں, فرسٹ ٹائم یہ علاقہ دیکھنے جا رہے ہیں. کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, لوگوں نے ڈرایا ہوا ہے اور بہت ہم ڈرے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی سفر کرنا ضروری ہے کیونکہ ہم نے آگے سندھ کا علاقہ کور کرنا ہے, تو اس کے لیے اس راستے سے جانا ضروری ہے. ابھی آگے چلتے ہیں, لوگوں کے تاثرات لیں گے, اگر انہوں نے مطلب ہمارے ساتھ کاپی رائٹ کیا, روڈ کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور بہت کچھ ہوگا آپ کے ساتھ شیئر. موسم کی صورتحال تھوڑی سی خراب ہو چکی ہے, یہ دیکھ لیں بادل آ چکے ہیں, لیکن پھر بھی ہم نکلنے لگے ہیں ایسے ہی ویدر میں. ابھی نیچے جاتے ہیں, جا کے کمرے کی چابی ان کے سپرد کرتے ہیں. بائک کھڑی کی ہوئی ہے, وہ نکالتا ہوں باہر, اور پھر انشاءاللہ رحیم یار خاں سے باہر والی سائڈ پہ نکلیں گے. سالکاباد سے نکلے ہیں تو یہاں پہ گڑ بنانے کی فیکٹریاں ہیں راستے میں چھوٹی چھوٹی. تھوڑا سا یہ نظارہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, 5-10 منٹ ریسٹ بھی کر لیں گے. روڈ سائڈ پہ اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں, یہاں پہ یہ مختلف قسم کا گڑ سیل کرتے ہیں. جیسے یہ ہے میوے والا گڑ, یہ ہے سمپل گڑ, چائے والا. اچھا, اور یہ کیا چیز پڑی ہے؟ یہ گڑ کا شیرہ. اچھا, گڑ کا, جسے چیڑ کہتے ہیں ہمارے. چیڑ نہیں, چیڑ وہ ہوتی ہے, یہ جیم کی طرح استعمال کرتے ہیں ہم سرائکی لوگ. اچھا, جیم کی طرح. اور پیچھے یہ شکر لگی ہوئی ہے. اچھا, تو یہ کیا ریٹ ہے؟ یہ ایسے گاجر والا ہے 450. اچھا, یہ ہم میوے والا تیار کرتے ہیں, یہ 400. ٹھیک ہے. یہ لوگ جو توفہ بیچتے ہیں. صحیح. اور یہ سمپل ہے, اس میں چائے وغیرہ بناتے ہیں, دودھ بنا لیتے ہیں یہ. اچھا, آپ اس روڈ پہ ٹریفک کی روانی دیکھیں کتنی زیادہ ہے, لیکن یہاں پھر بھی اس روڈ پہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ کسی بھی ٹائم کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ روڈ پہ آ جاتے ہیں اور فائرنگ کر کے کبھی ڈرائیوروں کو اغوا کر لیتے ہیں, کبھی بسوں سے لوگوں کو اغوا کر لیتے ہیں. لیکن اللہ کا نام لے کے ہم جا تو رہے ہیں, باقی آگے دیکھیں. یہاں پہ سننے میں ہے کچے کا علاقہ کافی خطرناک ہے. ہاں, یہاں پر ہم بھی ڈر کے رہتے ہیں رات کو, ماشاءاللہ وہ کا کوئی پتہ نہیں ہے. کوٹ سبزل سے آگے اگر اس روڈ پہ سفر کریں گے تو ٹینشن تو نہیں ہے. یہ ادھر یہاں سے جائیں گے نا کوٹ سبزل کے آگے جب جائیں گے پھر وہ ہو جائے گا, تو نہیں تو پیچھے صاف ہے علاقہ پورا. ادھر بھائی ہم بائک پہ جائیں اور وہاں پہ پکڑے جائیں, نہیں ایسے نہیں پکڑتے, ایسے نہیں پکڑتے. وہ کھینچ لیتے ہیں ڈاکو وغیرہ, جیسے بس پیسے لے لیتے ہیں, ویسے موبائل موٹر سائیکل نہیں پکڑتے. کچے کا علاقہ کون سا ہے؟ یہ ادھر جاتا ہے, یہ ادھر کورسو, یہ چوک سویترا, چوک سویترے کے آگے بھنگ کچا ادھر کا. آپ کبھی ان علاقوں میں گئے ہو؟ ہمارا وہاں پر ایک ایسا سسٹم بھی لگا ہوا ہے چوک سویترے پر. اچھا, یہ دیکھیں, یہ ہے جی گڑ کی فیکٹری, اور یہ پروسیجر دیکھیں یہاں پہ. یہ گڑ کا جو شیرہ ہوتا ہے اسے پکا کے اس طرح خشک کیا جاتا ہے, اس کے بعد یہ پیسیاں بنائی جاتی ہیں, اور یہاں پہ یہ پت تیار ہو رہی ہے اس کی.
ये अस्सलाम देखें, वालेकुम। ओह हर तरफ यहाँ पे खुशबू वाले धुएं उठ रहे हैं। ये देखें, ये होती है रॉ, जिसको गर्म करते हैं और इसके ऊपर ये मैल वगैरह आ जाती है, फिर यहाँ से साफ करके उसके बाद आगे डालते हैं। ये है प्रोसीजर। ये देखें, वहाँ से वो चलता है, मशीन चलती है जिसमें गन्ना डालते हैं, वहाँ से रस निकलता है और इस जगह इकट्ठा होता है, ड्रम पड़ा है जिसके अंदर ये जब ड्रम भर जाता है तो फिर उससे ये निकाल के इस साइड पे शिफ्ट करते हैं। ये आप यहाँ पीने के लिए भी देते हो? क्या रेट है इसका? कोई रेट नहीं है। कोई रेट नहीं है। अच्छा, भाईजान ये कितनी देर में ठंडा हो जाता है? तकरीबन 10 मिनट में। अच्छा, उसके बाद फिर पेसियाँ बनाते हैं। ये आप मतलब आर्डर पे भी तैयार करते हैं किसी ने अगर? बिल्कुल, आर्डर पे वो मेवे वगैरह वाला लेने आते हैं ना, अच्छा, वो मेवे घर से ले आते हैं, उसको जो है ना बना के देते हैं वो। सही। ये देखें जी, ये इधर शक्कर भी तैयार हुई पड़ी है, बहुत वीआईपी खालस शक्कर। असल कच्चे का इलाका संजीरपुर से शुरू होता है। संजीरपुर से लेकर डहरकी तक का इलाका काफ़ी ख़तरनाक है और इस एरिया में आए दिन कोई ना कोई वारदात होती रहती है। रात को सफ़र करना इस रोड पर ख़तरे से खाली नहीं। संजीरपुर से डहरकी के दरमियान कोट सब्ज़ल का इलाका आता है। यहाँ से एक रोड पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर की तरफ जाती है। इस रोड पर कच्चे के मशहूर इलाके कश्मोर और गुड्डू आते हैं, जहाँ पर आजकल जाना अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ है। सिंध और पंजाब की सरहद पर मौजूद चेक पोस्ट पर बड़े बड़े बैनर्स आवेज़ा हैं, जिन पर इस इलाके में सफ़र करने के बारे में वाज़ेह हिदायत दर्ज हैं, ताकि आप कच्चे के डाकुओं से बच सकें। ये चेक पोस्ट क्रॉस करने के बाद उबाड़ू शहर 12 किलोमीटर जबकि सखर 133 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। रोड की कंडीशन काफ़ी बेहतर है और आप इजी इस पर सफ़र कर सकते हैं। ये अभी हम कोट सब्ज़ल से आगे पहुंच चुके हैं सिंध के एरिया में। ये माड़ी चौक है, यहाँ से एक रास्ता जाता है मोटरवे की तरफ, जबकि ये मेरे पीछे ये जो रोड जा रहा है ये सीधा आगे सादकाबाद रहीम यार खां। तो ये है सिंध का पहला इलाका और पंजाब की हदूद के बाद आखिरी इलाका, और इसे कच्चे के इलाके से मशहूर किया जाता है और सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो इस एरिया में होता है। यानी ये सिंध का एरिया है, ये सिंध का एरिया है। क्या नाम है इस इलाके का जी? चौक माड़ी। अच्छा, यहाँ माड़ी चौक पे खड़े हैं और यहाँ भाई से इंफॉर्मेशन ली है, तो उन्होंने कहा है कि कच्चे का एरिया यहाँ से 20 किलोमीटर जो है वो अंदर वाली साइड पे है। मेन रोड पे तो वो बता रहे हैं कि कोई इशू नहीं, लेकिन अंदर वाली साइड पे जाएंगे तो फिर टेंशन वाली बात है। बस जी, अल्लाह खैर रखे, अल्लाह का नाम लेके चल तो रहे हैं, तो आगे देखी जाएगी क्या बनता। इस जगह पर काफ़ी मुकामी लोगों से हमारी बातचीत हुई, बहुत अच्छे लोग थे और उन्होंने हमें इस रोड और इस एरिया के बारे में काफ़ी गाइड किया। इस रोड के इसको छोड़ के आप कहाँ लिंक रोड नहीं जाना है, कहाँ भी नहीं जाना है।
वो इलाके में सही ये जैसे सिंगल रोड जा रहा होता है ना, ऐसे नहीं जाना है। बस इसी रोड पे रहना इसी रोड पे आपको रात को 3 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, आपको कोई नहीं पूछेगा। सही। इस रोड को आपने छोड़ना नहीं। ये कोई बंदा बोलता है ना आपको इधर चले, ये बना के दें हमें, ये सिस्टम वगैरह होते हैं, आपने इस रोड को नहीं छोड़ना। यहाँ पे हमें देख के काफ़ी सारे बंदे जो हैं वो यहाँ पे जमा हो गए हैं लोकल, उनसे गपशप लगाई है उन्होंने। ये देखें चाय की ऑफ़र की है, अभी चाय पीते हैं यहाँ पे, वो इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। तो बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं। और ये एरिया देखें, यहाँ टोटली जो दरिया वाली साइड पे काने वगैरह होते हैं वो लगा के यहाँ दीवारें वगैरह बनाई गई हैं। ये छोटे छोटे ढाबे हैं यहाँ पे, ये देखें चाय वगैरह के लोग यहाँ बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। बहुत ही एक पुरअमन और पुरसकून एरिया है। हम जिस तरह सोच के आए थे फिल वक्त तो उसके ऑपोजिट मिला है, लेकिन अब आगे जाते हैं तो अल्लाह खैर करेगा, फिर देखेंगे। अभी हम चौक माड़ी से आगे जा रहे हैं ढेरकी और कोठी की तरफ। यहाँ पे हिंदुओं के बड़े बड़े टेंपल हैं और टोटली हिंदू आबादी है। अच्छा, यहाँ चौक माड़ी पे जिन भाई से हमारी गपशप हुई तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि ये जो रोड है ये नेशनल हाईवे है और इस पे अगर आप रात को 2 बजे भी सफ़र करें तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन इसकी जो दोनों साइडें हैं उन पे नहीं जाना। अंदर जो छोटे लिंक रोड जा रहे हैं अगर उन पे जाएंगे फिर आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है। लेकिन जब ढेरकी पहुंच जाएंगे और वहाँ हिंदुओं के एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे कोई इशू नहीं, वो सारे सेफ इलाके हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज हम वहाँ पे पहुँचेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे हिंदुओं के मंदिर और इलाके की और इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह आपके साथ खूबसूरत नज़ारे शेयर करते जाएंगे। अभी देखें सिंध का एरिया और यहाँ पे वाइब जो है वो बिल्कुल पंजाब वाली आ रही है। अभी आगे जाके देखेंगे सहरा में कि सहरा के नज़ारे कैसे हैं। ये देखें यहाँ पे अभी हम बहुत ही ख़तरनाक इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे ये देखें इन्होंने एक डाकू पकड़ लिया, वो इसको ये देखें कैसे मार रहे हैं। और ये देखें सारी आवाम इकट्ठी हो गई है और यहाँ पे उसकी धुलाई हो रही है। ये देखें ये इतना ख़तरनाक इलाका है ये देखें। क्या किया इसने? बाहर नडो खणी उन्हीं के कोई से जो नहीं। अच्छा, कत्ल करके आया। हाँ। कैसे बोल रहे हैं पता नहीं यार। ये जो लड़का बैठा हुआ है ना नीचे, जो मार दे रही है, उसने खून करके भागा है। अच्छा, अभी खून करके भागा है। पानी के पीछे आ गए। अच्छा, ये देखें ये कत्ल किया हुआ था इसने और ये मकामी लोग यही बता रहे हैं कि मालिक उसके पीछे आ गए हैं और उन्होंने इन्हें पकड़ लिया। नाज़रीन, अभी हम जिस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं वहाँ से 2 सड़कें निकलती हैं। ये सामने वाली सड़क जाती है ढेरकी शहर की तरफ, जबकि सखर वाली साइड पे जाएं तो ये वाला रोड जाता है। अभी यहाँ किसी से इन्फॉर्मेशन लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ ढेरकी में हिंदुओं के मंदिर किस साइड पे हैं। अच्छा नाज़रीन, ढेरकी मेन शहर की तरफ जो रोड जा रहा है उस पर हमने नहीं जाना, वहाँ चौक से इन्फॉर्मेशन ली थी। हमने सखर रोड पे ही जाना है और यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर फासले पे एक पंप आएगा। वो पंप के साथ एक रोड नीचे को उतरेगी और वो जाएगी सीधी हिंदुओं के मंदिर में। अभी हम उस साइड पे जा रहे हैं और वहाँ जाके भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कहीं हमें मिस गाइड ना कर दिया जाए और हम नए चक्कर में ना बन से खड़े हों। तो थोड़ा थोड़ा दिल जो है वो डर भी रहा, लेकिन ये है कि वहाँ जाके एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके मुताबिक फिर हम आगे सफ़र करेंगे। अभी हम मेन सखर रोड से नीचे उतर चुके हैं और यहाँ हम जाने लगे हैं हिंदुओं की आबादियों की तरफ, जहाँ हिंदुओं की मोस्टली आबादी इस एरिया में आबाद है। तो इस एरिया का नाम है सच्चू सतराम दास और ढेरकी साहिब में ये मौजूद है। तो ये पीछे वाला रोड ये सीधा जाएगा उस साइड पे। यहाँ पे ये देखें, ये पीछे एक पुलिस चौकी मौजूद है, यहाँ पे आप आएँ और इसके साथ ये जो रोड जा रहा है यहाँ से आप आगे रामदास जो इनका ढेरकी का जो मंदिर है वहाँ पे जा सकते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो का हम यहीं पे करते हैं इख्तिताम। हिंदुओं का मंदिर, उनकी रसूमात और वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो तक हमारे साथ जुड़े रहिए।